Hello, guys. Today we have a very special person with us who started at a very young age, but she eventually opened her own academy. I'd like you all to get introduced to Miss Rupal Jain. Hello, Miss Rupal. Admivo is very happy to have you here, and let's see where this takes us and what journey do you have. Thank you so much for inviting me. I'm so glad to be here because I was also willing to share my story and I got this opportunity. I'm very happy to be here. And to introduce myself, my name is Rupal Jain. I am a founder of Digital Motion Academy, which is a dedicated institute of designing and animation. And it's been about a year I started Digital Motion Academy, but there's a journey behind it. Okay, so we all are very excited to know that. So let's go. Okay. Okay, so let's start with the very first question. I go the traditional way first. So, as you know, that the traditional paths in India are mostly engineering और आप डॉक्टर बन जाइए. तो ये नॉन ट्रेडिशनल पाथ लेने के लिए आपने कैसे सोचा? फॉर एन एग्जांपल कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग मेन आपका जो डोमेन है, यू टुक मार्केटिंग. यस, राइट? दीज ऑल आर द एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग. So what made you took that at a very young age? You took such a bold step. Okay, so this creativeness is something it grows along with the time. When I was in 12th, when I was in 10th, then I decided not to just go for a study thing. Somehow my mind changed, and जैसे social media evolve हो रहा था, I thought I should choose something that pushed me to a creative field. So मैंने 11th में I choose my optional subject is a multimedia. That is my first step that made me aware about there's something other than study part. So I choose multimedia and web tech as my optional subject, and वहाँ से मुझे समझ में आया कि there are more creative fields. I'm lucky enough and I was aware that I choose creative field. Otherwise, there are a lot of people still they are not aware. So it's very very important in today's scenarios that whatever path you are choosing, you should have a good understanding. आप पहले counseling लो या फिर understanding करो, research करो. अभी तो हमारे पास technologies हैं, everything we can ask. So that is very important. And then मतलब I do not have wait for even my 12th result, and then I just after completing my exam I choose an institute to start my career in animation and VFX. Okay, that's a really nice answer. So if someone is just finishing school and after 12th or something like that, so do they need a specific skill or a portfolio, or a strong portfolio can work best for them? So basically, for building a portfolio of anything, you have to get a knowledge of that skill or that creative path first. So what career option anyone choose in a creative field is like there are a lot of things other than study right now. There are AI, there are a lot of creative fields. Designing, video editing, motion graphics, animation is booming. Like every niche, every person for themselves also they are requiring a creative skills जो कि आज video editing है. So if I want to post anything on social media, first I want to edit that. So उसके लिए designing and editing is very important. Now when you choose this skill, उसमें आपका फ्यूचर तभी बनेगा जब आप उस स्किल को मास्टर करते हो, और मास्टर करने के लिए यू नीड टू गिव टाइम एंड हैव टू हैव अ पेशेंस. एंड अगर आप उसमें एक करियर और एक फ्यूचर ग्रोथ जाना चाहते हो या लेना चाहते हो, फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक गुड शोकेसिंग हो. दैट इज व्हाट वी कॉल पोर्टफोलियो. सो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ओवर द टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस, you have to master, because creative skill is all about giving time. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उस चीज को टाइम दोगे, उतना आप उसको शार्प कर पाओगे. सो यस, बिल्डिंग पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आपकी पहचान होगा रेदर देन डिग्री. नो बडी विल आस्क यू द पीस ऑफ पेपर, नो बडी. इवन दे डू नॉट आस्क यू आपका कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है. पहले मैटर करता कि आपको 5 साल का है आपको ज़्यादा पे मिलेगा, आपको 10 साल का है आपको ज़्यादा पे मिलेगा. लिटरली इन क्रिएटिव फील्ड अभी ये मैटर कर ही नहीं रहा. एक बच्चा अगर 15 साल का है वो भी आज 2 लाख 4 लाख ईजिली कमा सकता है इफ ही इज इनटू अ गुड क्रिएटिव फील्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वर्क को कितने
जल्दी अच्छे से सीखते हो और कितना अच्छे अपने को शोकेस कर सकते हो. Portfolio, having portfolio is your identity, not the degree, not the piece of paper. So it is very very important कि आप अपनी स्किल को बढ़ाओ, आप अपने आप को मार्केट कैसे कर सकते हो, शोकेस कैसे कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोबडी, ट्रस्ट मी, नोबडी विल आस्क यू आपको 10 साल हो गए, 15 साल हो गया, या आपके पास कौन सी डिग्री है, बिकॉज इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर लिटरली. यस, आपका एकेडमिक एजुकेशन ये मैटर करता है बिकॉज वो आपको बिल्ड करता है आगे फ्यूचर के. पर जो पाथ आप चूज करते हो उस पाथ के लिए आपको उस पाथ के लिए जो परफेक्ट रोड मैप होता है ना, जो फ्रेमिंग होता है, वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी पोर्टफोलियो. If I talk about designing, there are many specializations, right? Design, motion graphics, logo design, etc., etc. So, for the students, is it important to have specialization in one particular niche, or they can choose or be a specialization of a full stacker, design person? देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटिव फील्ड्स. जब आप लेट्स सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग में जाते हो तो आपको लगता है एनिमेशन भी कर लेते हैं एंड बाकी और चीज़ कर लेते हैं. यस, एक्सपांडिंग योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप पैसा चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट चूजिंग वन नीश विल रिकॉग्नाइज यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सपोज आज मैं आई स्टैंड आउट एज अ ग्राफिक डिजाइनर और स्टैंड आउट एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, तो दैट इज वन थिंग दैट आई एम मास्टर ऑफ. मुझे मोशन ग्राफिक बहुत अच्छे से आता है, वो मेरे को वही एक एनिमेशन का पीपल माइट बी चार्जिंग 5,000 2,000, बट उसी का मैं यहाँ 2 लाख 4 लाख भी चार्ज कर लेती हूँ बिकॉज मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको हाई इनकम चाहिए है या ज़्यादा पैसा चाहिए है, आपको, क्योंकि रिक्वायरमेंट हर चीज़ की है, इसलिए आपको एक ऐसी चीज़ में बहुत अच्छा होना पड़ेगा जिससे आप ज़्यादा पैसा भी कमा पाओगे और यू विल नोन फॉर दैट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको लगता है कि आपने एक चीज़ मास्टर कर लिया है, या मास्टर तो वैसे भी हम हर चीज़ नहीं कर सकते, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ आपको एक स्किल आता है, जैसे अगर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, अगर मुझे लगता है कि ग्राफिक्स मैंने अच्छे से आ गया है और एनिमेशन सीख लेना मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो यू हैव टू गो फॉर सम रिलेटिव स्किल. जैसे ग्राफिक डिजाइनर मोशन ग्राफिक सीख सकता है और इसी नीश में, इसी पाथ में अपनी स्किल को बढ़ा सकता है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अदर स्किल, बिकॉज हर एक माइक्रो नीश में भी पैसा है. जैसे देयर आर पीपल जो सिर्फ लोगो डिजाइनिंग करते हैं, थंबनेल डिजाइनिंग करते हैं और उसमें भी काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं, rather than वो people जो बहुत सारी स्किल सीखने के बाद भी they are earning nothing. So that is very important. You have to choose one that recognize yourself. So that is me. So, how did your diploma into design or the institute which you choose to have a design degree, so do you think it helped you in somewhere? So basically, trust me guys, till now, nobody has asked me for a piece of paper or degree. Literally, I have worked with 50 plus brands, and these are the top brands. And instead of they are the top brands, they might be choosing you because आपके पास वो डिग्री है. नहीं, वो आपको इसलिए चूज करेंगे क्योंकि मैंने वो पोर्टफोलियो, वो वर्क शोकेस करा है जो उन्हें रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी स्पेसिफिकली क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो, वहाँ पे आप कितने एक्टिव हो, कितने उनके लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो और कितना अच्छा सॉलिड आपका वर्क है, ये मैटर करता है rather than that piece of paper. यस, एक प्रोफेशनल अकेडमिक आगे बढ़ने के लिए अगर आप फॉरेन जाते हो या अगर आप आगे का स्कूलिंग करते हो, देयर माइट बी रिक्वायरिंग अ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. आई वुड रिकमेंड कि वो करो. ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि ये स्किल आपको पैसा दे रही है तो यू जस्ट स्किप योर एजुकेशन पार्ट. नो, दैट इज अ फॉर्मल थिंग दैट यू हैव टू डू. मैंने भी किया है. बट यस, अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको उस चीज़ के लिए बेस्ट होना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ पोर्टफोलियो वर्क ही मैटर करता है. तो बी फोकस ऑन प्रिपेयरिंग दैट रेदर दैन फोकस ऑन जस्ट डूइंग अ डिग्री. So, if I talk about the industry exposure, right? So, what exactly are the career options in this particular sector? There are a lot of career options in a creative field. जैसे you can be a graphic designer, you can be a video editor, motion graphic artist, you can be animator, gamer. काफ़ी सारी creative fields है. जब जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वहाँ पे creative fields भी बढ़ती जा रही हैं. जैसे अभी AI आया तो AI के अंदर ही कितनी सारी जॉब्स क्रिएट हो गई.
So there will be a lot of fields. There will be आगे आगे जैसे जैसे स्किल्स बढ़ता जाएगा, पहले हॉबीज को करियर नहीं माना जाता था, आज आप जिस चीज करने पैशनेट हो वो भी आप करियर बना पा रहे हो. तो क्रिएटिव फील्ड्स तो आपकी हॉबी भी बन रहा है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ अदर क्रिएटिव फील्ड एज वेल. एंड ऑल्सो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, जो आज एक इंडिविजुअल स्किल दिख रहा है, इनके अंदर भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है. लाइक यू कैन बी स्पेशलाइज्ड एट logo designing, thumbnail designing, post designing. So inside a graphic designing, you can be at individual artist also. So, as we all know that you have an academy, right? You started very young. So, I want to know that what exactly आपने काफी बार encounter किया होगा कि beginners जो होते हैं तो वो client projects उठा लेते हैं, internships ले लेते हैं, तो what mistakes do they exactly make और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए कि उनका जो भी इंटर्नशिप है, क्लाइंट प्रोजेक्ट है, वो सक्सेसफुल हो. सो बेसिकली अभी जैसे वीडियो एडिटिंग बढ़ने लगा है, पीपल आर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटेड वे, एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेट वे ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गो विद द सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल पार्ट. इनसाइड द वीडियो एडिटिंग वी वर्क ऑन आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो, दैट इज द मेन इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर. नाउ पीपल आर चूजिंग अ बैकअप easy option, like they might be using CapCut or other editing software. That is not wrong, but the quality that they deliver, that really matter a lot. Like there might be a lot of companies जिन्हें फर्क नहीं पड़ेगा because that is anyway solving their purpose. But when you go for a long term, that is very important, and I want everyone to be aware that कि अगर आपको आगे बड़े projects चाहिए और ज़्यादा पैसा अगर आप सोचते हो, तो you have to start with a great thing, not a easy thing. That is very important. तो आज तो चल जाएगा, काम हो रहा है, आपको तो लग रहा है कि मेरा काम बन रहा है, बट आपकी लिमिटेशन ऑफ अर्निंग और नॉलेज वहीं तक रह जाएगी, क्योंकि आप खुश हो गए हो कि हाँ मैंने जो सीखा वो सही है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं आएगा. द क्वालिटी वी डिलीवर फॉर द एक्सप्लेनर वीडियो, द क्वालिटी दैट वी डिलीवर फॉर अ बिग ब्रांड्स, उन्हें वही आर्टिस्ट चाहिए पड़ते हैं जो वो क्वालिटी अचीव कर पाए. वहाँ पे आप सोचोगे कि नहीं मुझे तो वो आता ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर आप अच्छा नहीं कर पाओगे. सो व्हाट आई विल रिकमेंड टू एवरीवन दैट वी अवेयर हाउ लॉन्ग यू हैव टू गो. अगर बड़ा बनना है और आगे जाना है तो उसके लिए सही पाथ चूज करो जो आपको क्वालिटी भी देगा और स्किल भी दे. So in India, we already have a career boom of this particular industry, right? So do you think बाहर outside countries में भी ये एक अच्छा option हो सकता है career path wise? Absolutely, because the creative field is not limit to any case. और जबकि हम फॉरेन में अगर देखे जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है. इफ somebody wants to learn or either do a job, obviously they pay a very good amount. और अगर इफ़ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स तो आपकी स्किल का एक काफ़ी अच्छा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं. सो इनफैक्ट मेरे पास स्टूडेंट्स हैं दैट लर्न फ्रॉम मी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. I have students from Canada, UK, Dubai, US. There are a lot of places जहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं. और सोचो अगर वहाँ पे वो है ऑलरेडी तो वो एक स्किल सीख के काफ़ी अच्छा हार्ड अर्न कर सकते हैं. और एज वेल एज इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द फील्ड इन फॉरेन, साइड बाय साइड आप ये स्किल सीख सकते हो ताकि आप अपना एक अर्निंग सोर्स बढ़. आई रिमेंबर स्टोरी, मेरा एक स्टूडेंट था, ही इज़ लर्निंग फ्रॉम मी, एंड उसका कंपनी में रिक्वायरमेंट आया था फॉर अ जर्नलिस्ट, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग या मोशन ग्राफिक्स आता है. दे आर विलिंग टू पे 250K dirham. सो दैट वाज अ इनसीन अमाउंट. इवन दे आर जस्ट रिक्वायरिंग फॉर द टेस्ट इन पोर्ट. तो अगर आप आज फ्रेशर भी हो, आपके पास वो स्किल है, अच्छे से आप सीखते हो, तो यू कैन अर्न इन डॉलर्स, यू कैन अर्न इन अ वेरी गुड अमाउंट. तो काफ़ी बड़ा स्कोप होता है. आप इंडिया में भी बैठे हो, आप अपनी प्लेस पे भी हो, आप फॉरेन भी जा सकते हो, प्लस आप बाहर से काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो एज अ फ्रीलांस. Okay. So what was your vision when you started Digital Motion Academy, and how do you think this is a very different platform as fun as the other institutions are concerned? Okay, so Digital Motion Academy is something that I can relate as a student, because जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर इन एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग आइचोरा इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी फेस करी दैट हिट मी, लाइक कि अगर मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँगी तो मैं ये चीज़ तो कभी नहीं करूँगी.
that made me confident that कि there are a lot of students जो वहाँ से आते हैं, he missed a very good amount, but just उन्हें अवेयर नहीं होता है कि क्या फ्यूचर है, क्या करियर है, या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा. पीपल चूज अ पाथ जो उन्हें सक्सेसफुल नहीं बना पाता है, एंड देन दे रिग्रेट. दे फाउंड दैट कि नहीं, मैं ये तो गलत है, इसमें पैसा नहीं है और ये अच्छी फील्ड नहीं है. बट ट्रस्ट मी, अगर आपने सही से उस चीज़ को चूज़ किया है, लाइक अगर आप पहले ही अवेयर हो कि आपको डिज़ाइनिंग में जाना है, एडिटिंग में जाना है, या आप पहले अवेयर होते हो कि इससे क्या फ्यूचर होगा, तो आप काफ़ी अच्छा रास्ता चूज़ कर पाओगे क्योंकि इसकी डिमांड और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. All right, now we'll start with the one-liners. So mainly what you'll have to do is that you will have to give the answer into one line. Okay. So my question is to you that you build a brand from scratch, right? And right now you are having a 60 plus K community on Instagram. Okay. So I want you to give a piece of advice to the student who are also seeking their own personal brand or are looking forward to, open their own brand. So social media will be a great option to showcase your work, and in that you can do a personal branding, start giving value, and educate people. Two things only work: entertaining or educating. So start focusing on giving. So with the apps like AI tools everywhere, ChatGPT, Canva Pro, so do you think these apps and AI can replace the students and their own skills? They cannot replace, but you have to use that. That is very important. Otherwise, they might can replace you, because you have to use them, utilize them in your work. That is very important. तभी आप आगे बढ़ पाओगे और अपडेट रहेगा. That is the wrap of this podcast. Thank you so much, Ms. Rupal, for coming to Adnivo and educating us from scratch and building this good relation with us. Now, we'd like to take leave. Let's see you guys in the next podcast. Until then, please like, share, and comment. Thank you so much.